What were we discussing? We were discussing about friction. Friction जो है, it is termed as a necessary evil. Necessary evil. Evil is something which is not good. But यहाँ पर irony देखिए, it is not good sometimes, but it is required. Why is it required? We had discussed yesterday. Imagine certain things. First thing, despite resistance offered by friction, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि it offers resistance to the motion, है ना? Motion को resist करता है. So despite offering resistance to motion, it also plays a very important role in our lives. कैसे? कुछ हम डिस्कस करते हैं. I told you yesterday I will not be able to write on board had friction not been there. आप कुछ भी पेन को ग्रिप कर कर, पेंसिल को ग्रिप कर कर, you will not be able to grip pen or pencil and write if friction would not have been there. ठीक है? सबसे important, I or you or anyone would not be able to walk. We will not be able to walk if friction was not there. हम लोगों ने ये already experience किया हुआ है कि अगर friction है तो we are able to walk. कैसे? The sole of our shoes has certain patterns. देखिए, तो वो जो patterns होते हैं उनके कारण there is friction which is coming into play between the sole of our shoes or slippers and the floor, surface of the floor. उस फ्रिक्शन के कारण we are able to move. Suppose you are moving barefoot. मैंने आपको बताया था आपके हैंड में ऐसी ये जो लाइंस बनी होती हैं, this makes the surface of our hand rough when compared to this side. Yes or no? Touch your this side and this side. Which is more rough? This side? It is because of these lines which are providing those grooves. But you don't have anything of such side on this side. That is why we are able to hold it. अब एक और situation imagine कीजिए, हमारे hand के ऊपर oil लगा हुआ है. We have applied oil or cream on our hands and then try to grip objects. Try to hold a pen. Try to hold a pencil or a glass tumbler. Will it be easier or a difficult one? Will it be easier or difficult one? Simran, my dear. Ma'am, it will be difficult to hold objects. Difficult. बिल्कुल ठीक कहा. अगर हमारे हैंड में ऑयल लगा हुआ है, क्रीम लगी हुई है, तो ये स्लिपरी हो जाता है. Have you ever experienced this? Yes. If you wash, आजकल हम लोग one thing we are doing very frequently. Any act we do, we go and wash our hands. We are instructed कि हमें hand wash करने. Soap से ज़्यादा hand wash करने के बाद, do you realize that your hands have become rough? And then you need to apply some moisturizer to your hands. Yes or no? Raise your digital thumbs up if you agree with me. Yes? Sukhnoor, do you agree? Repeated hand washing with soap makes the surface of our hand rough, right? It is Yes, ma'am. वेरी गुड. इससे अभी ऐसे क्यों होता है और क्रीम लगाने से वो स्मूथ क्यों हो जाते हैं? आपको बहुत अच्छा लगता है ना व्हेन यू अप्लाई क्रीम, योर सरफेस ऑफ योर हैंड्स एंड योर फेस बिकम्स वेरी स्मूथ, बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि अदरवाइज अवर हैंड हैज ग्रूव्स इन इट. ये जो लाइंस हैं, ये जो हैं, इट प्रोवाइड्स रफ सरफेस, और जब हमने क्रीम लगाई तो वो इस रफ सरफेस को फिल कर देगा एंड फिल करने से जो इरेगुलरिटीज थी, जो रफनेस थी, वो फिल हो गई, और फिल होने से सरफेस स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया. समझ आ रही है बात? तो इफ यू आर होल्डिंग अ पेन और अ पेंसिल, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विच इज कॉज्ड बाय द टू सरफेसेस. यू मस्ट हैव नोटिस्ड पेंसिल का सरफेस भी, पेंसिल के सरफेस को भी आपने नोटिस किया होगा. Sometimes they have that corners, edges बने होते हैं. कुछ पेंसिल्स बिल्कुल सिलिंड्रिकल होती हैं. You realize this? तो ये जो है, that is also providing friction. That ऊपर जो wood itself is surface, rough surface, so it provides more friction.
तो अब इमेजिन कीजिए वॉकिंग वुड नॉट है, हमने अभी एक्सपीरियंस किया हुआ है हम लोगों ने कि अगर सरफेस के ऊपर वाटर है, सरफेस के ऊपर ऑयल है, सरफेस के ऊपर सोप है, सरफेस के ऊपर टैल्कम पाउडर है फ्लोर के ऊपर, तो आप स्लिप कर जाते हैं। यस, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पाउडर से, ऑयल से, वाटर से जो सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज है, ये जो सरफेस है ये आपको बताया स्मूथ नहीं है, द सरफेस इज हैविंग इरेगुलरिटीज लाइक दिस। तो जब आपने इसके ऊपर पाउडर या ऑयल या वाटर फिल हुआ तो ये सरफेस जो है इसके ऊपर ये जो है इरेगुलरिटीज फिल हो गई इसके साथ, और जब ये फिल हो गई तो ये सरफेस स्मूथ होगी, तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसीलिए अगर हमारे स्लीपर्स या हमारे शूज, उनके नीचे जो ग्रूव्स होते हैं, यस, अगर वो वोर्न आउट हो जाते हैं, पहन पहन के वो खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और अगर वो घिस जाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन जो अब वो ऑफर करेंगे वो लेस हो जाएगा, और जब लेस हो जाएगा फ्रिक्शन तो वी टेंड टू स्लिप। ठीक है सिमरन, you want to ask something? You have raised your hand. Okay, now you have understood. तो इसका मतलब आपने एक और चीज नोट की है, अगर व्हीकल्स के टायर्स हैं उनके ऊपर कितने बड़े बड़े ग्रूव्स बने होते हैं। हैव यू सीन दैट? हैव यू सीन the grooves on? Now you can see these are the grooves I am talking about. ये जो grooves बने हुए हैं ये अलग अलग टायर्स के ऊपर अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं, और आपने देखा है ये जो बहुत डिप्रेशन होता है अंदर की तरफ, अगर आपने ध्यान से देखा है, अगर नहीं देखा है तो आफ्टर द क्लास यू कैन सी द व्हीकल स्टैंडिंग, आपके साइकिल टायर्स, आपके कार टायर्स, आपके एक्टिवा मोटरसाइकिल के टायर्स, ऑल ऑफ देम हैव दीज ग्रूव्स। व्हाट आर दीज ग्रूव्स डूइंग? ये जो न्यू वाले टायर्स होते हैं इनमें ये ग्रूव्स बहुत अच्छे प्रोमिनेंट होते हैं, है ना, एंड they provide grip when the vehicle is moving on the road, surface of the road, and these grooves they are getting interlocked because of this rough surface. ये जो rough surface है that is the one which is providing increased friction, and the tires do not and the vehicle does not tend to slip. लेकिन जब रोड के ऊपर either oil is spill or water is there and it has become grease is there, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है कि ये जो सारे ग्रूव्स हैं दे आर फिल्ड बाय दीज ग्रूव्स, जो ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये ग्रूव्स जो होते हैं दे आर फिल्ड बाय ऑयल और वाटर और ग्रीस, एंड फ्रिक्शन डिक्रीजेस एंड इट टेंड्स टू स्लिप। सो ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं इनको ट्रेडिंग कहते हैं, TREADING, ट्रेडिंग, थ्रेडिंग ऑफ टायर्स। ये जब होते हैं देन इट प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन। तो आप जानिए कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए, राइट? सो इट इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज टू इन आवर लाइफ्स टू हैव फ्रिक्शन। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखा होगा, जो एथलीट्स होते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, उनके क्रिकेटर्स होते हैं, उनके शूज के नीचे स्पाइक्स बने होते हैं। यस, why are they provided with? They don't wear ordinary kind of sports shoes जो हम लोग पहनते हैं, वो स्पाइक्ड शूज पहनते हैं। जो उनके स्पाइक्ड शूज होते हैं उनके नीचे जो सरफेस होता है वो ज्यादा रफ हो जाता है, हमारे ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स शूज से भी ज्यादा। एंड व्हाट हैपेंस, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रिक्शन, और इससे उनको ज्यादा बेटर ग्रिप मिलती है एंड दे कैन परफॉर्म बेटर व्हाइल रनिंग, दे डोंट टेंड टू स्लिप अगर वो स्पाइक्स पहनते हैं। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, हम लोग लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ब्रेक्स हम अप्लाई करते हैं, यस, साइकिल के ब्रेक्स हम अप्लाई करते हैं, एक्टिवा, मोटरसाइकिल, कार और एनी अदर व्हीकल, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स दैट व्हीकल टेंड्स टू स्लो डाउन। ठीक है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शू एंड द व्हील्स। व्हील्स के पास में, अगर आपने नहीं देखा है ध्यान से, तो आप सबके पास साइकिल्स हैं, साइकिल्स के पास में देखिए ब्रेक पैड्स होते हैं, जो कि जैसे ही आप खड़े साइकिल के ऊपर करके देखना, आप ऐसे करके ब्रेक अप्लाई करेंगे, वो जो ब्रेक पैड्स होते हैं टायर को टच कर जाते हैं। यस, अगर नहीं देखा है तो आज इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आपने घर में जो साइकिल खड़ा हुआ है उसको आपने ध्यान से देखना है कि आप उसको ब्रेक अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे जो टायर के साथ में ब्रेक पैड्स लगे हैं वो जाके एकदम क्लिंग कर जाते हैं, और जब आप रिलीज करते हो थोड़ा सा गैप आ जाता है एंड द व्हील स्टार्ट्स मूविंग। क्लियर? सो ब्रेक पैड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो
offering friction and very much necessary in our life. Matchstick जब हम burn करते हैं, जब when we light the matchstick, what happens? Matchstick burns. कई बार वो जो surface होता है वो घिस जाता है ना? वो घिस जाता है तो क्या होता है? उसके ऊपर आप matchstick जितनी बार मर्जी उसके ऊपर strike कीजिए, it will not light up. So there, अगर आपने note किया matchstick का surface जो होता है, let me show you the surface of matchstick. We have this matchstick here. तो ये जो matchstick के ऊपर ये surface है, this is rough surface. अगर सबने नहीं देखा है तो आप लोग देखेंगे ध्यान से. ये rough surface है और इसी के ऊपर हम लोग ये जो pointed end है इसको हम strike करते हैं. हम इसके ऊपर strike करते हैं. Yes. Suppose it is worn off. ये ज्यादा worn off है तो ये जल्दी strike नहीं होता है. लेकिन ये जो है ज्यादा, तो rough surface जो है it provides more friction. And friction provide करने के कारण it gets lighted up. Matchstick gets lighted up. ठीक है ना? ये सारी चीजें जो हैं, these are all very necessary things in our lives. So without friction, we will not be able to do any of these acts. And can you imagine your life without walking, without able to hold things? With imagine कीजिए एक surface जहां पर कोई friction नहीं है. There is no friction. Imagine a surface where there is no friction and you tend to walk on it. तो क्या होगा? Can anyone tell me? Please unmute and tell. Ma'am, we will slip. एक ऐसा surface जिसमें कोई friction नहीं है and you are trying to walk. सविनय? Ma'am, we will slip. Ma'am, we will slip. हाँ जी? Ma'am, we Will we be able to walk or will we be able to drive? Brakes नहीं apply हो रही. Brakes नहीं apply हो रही तो आपको लगता है No, कि ma'am. stop होगा कभी भी? No. So can you imagine a life like this? No. So ये friction की No, ma'am. listed a few. अभी हमने जितने discuss किए, those are all advantages of friction. Clear to all of you? These are all advantages of friction. But at the same time, friction जो है, it can be troublesome also in certain cases. जैसे कि हम शूज लेते हैं, जब हम नए वाले शूज लेते हैं तो उसके नीचे देखिए सोल कितना बढ़िया होता है ना. It is having so many grooves in it. With the passage of time, what happens? वो घिस जाता है. चप्पल जो होती है आपके, स्लीपर्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं. Yes, you will have to buy another one. चाहे आपका शूज बिल्कुल ठीक है लेकिन उसका सरफेस जो है खराब हो गया है, सोल जो है खराब हो गया है, you tend to slip, then you need to change it. Yes, so जो friction होता है, it causes wear and tear. It causes wear and tear. और wear and tear से क्या होता है? हमको gradually हमें चीजें जो है buy करनी पड़ती हैं. We have to use them, waste your money. मतलब ट्रेडिंग ऑफ टायर्स भी हमें बार बार करानी पड़ती है क्योंकि टायर्स भी खराब हो जाते हैं तो दे टेंड टू स्लिप, एक्सीडेंट्स कॉज कर सकते हैं. सो दिस इज वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. भले ही हमें फ्रिक्शन बहुत जरूरी है लेकिन फ्रिक्शन के कारण वेयर एंड टेयर हो रहा है और इस वेयर एंड टेयर के कारण व्हाट शुड वी डू? वी विल हैव टू रिप्लेस द टायर्स एंड द शूज एंड द स्लीपर्स एटसेट्रा. सेकेंड थिंग, फ्रिक्शन जो होता है, जो मशीन पार्ट्स होते हैं, मशीन वर्क ही तब करती हैं जब उनके पार्ट्स आपस में रब करते हैं. तो जब मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के साथ रब करेंगे, एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो उनको वो डैमेज पहुंचाएंगे. और हमें ये भी पता है कि हमने ये पता है हमें ऑलरेडी कि फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूसेस हीट. हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और साथ में ही इनकी रबिंग के कारण इट इज कॉजिंग डैमेज टू मशीन्स. is causing damage to machine parts. तो उनको भी हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है. समझ आ रही बात? तो it is causing damage to machines, it is causing wear and tear. Friction जो है it causes wastage of energy. बहुत सारी energy, lots of energy is wasted because objects in contact require more force to overcome friction between their rubbing surfaces. अगर उनको energy
एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड जब दो सरफेसेस आपस में रब करेंगे टू ओवरकम फ्रिक्शन सो एज टू ब्रिंग इट टू मोशन। मशीन्स तो तभी रब करेंगी ना जब दे विल ओवरकम दैट फ्रिक्शन, दे विल मूव तभी करेंगे जब फ्रिक्शन को कम करेंगे, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तभी करेगा जब फ्रिक्शन को हम कम करेंगे, तो उस केस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं। You can add more. So that means friction जो है एक necessary evil हो गया। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं हमारी लाइफ में, लेकिन उसके एट द सेम टाइम कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो दैट इज व्हाई वी से दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। फो मतलब एनिमी, मतलब फ्रिक्शन फ्रेंड भी है बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एंड इट इज डिसएडवांटेजेस आल्सो, वी हैव लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस। ये सारी की सारी चीजें फ्रिक्शन एडवांटेजेस होते हुए भी ये सारी उसके साथ हमें डिसएडवांटेजेस भी मिल रही है। So friction is both a friend and an enemy, a foe also. Now I want you to do that activity. I hope you have got a rough surface. आप show कर सकते हैं rough surface on the screen to me. जो भी आपको मिला है, whatever you have got it, bring it closer to the screen. Carl Simmer has got some. Okay, उसने kit रखी है, kit का surface rough है. Very good idea, Carl Simmer. बहुत अच्छी बात है। मन्नत आई गेस हैज गॉट अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मन्नत यू विल हैव टू रिमूव दैट कवर, पेपर वाला कवर रिमूव कीजिए जहां पर आपको रफ सरफेस नजर आए। नंदिनी, किट तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो अगर आपकी किट का सरफेस रफ है आप वो भी ले सकते हैं। नंदिनी हैज गॉट अ किट आई गेस, एंड सविनय आल्सो हैज गॉट अ कार्डबोर्ड, लेकिन कार्डबोर्ड का बेटा जो पेपर है ना वो रिमूव कीजिए थोड़ा सा। सुखनूर, अगर आपकी किट का सरफेस रफ है तो वेरी गुड बेटा, स्मूथ वाला सरफेस मत लेना। मन्नत हैज गॉट अ कार्डबोर्ड आई गेस, उसका रफ सरफेस, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पेपर रिमूव कर दीजिए उसका, जो उसकी बैक साइड होती है ना, बैक साइड वाला पेपर रिमूव कीजिए। नंदिनी हैज आल्सो गॉट अ किट। सहजप्रीत, आई एम नॉट एबल टू मेक आउट, इज इट कार्डबोर्ड बेटा? महक, आपका ये आई एम नॉट, प्लीज अनम्यूट महक एंड सहजप्रीत, व्हाट इज दैट यू आर यूजिंग एज अ सोर्स ऑफ रफ सरफेस? प्लीज टेल बेटा, अनम्यूट महक, प्लीज अनम्यूट एंड टेल बेटा। हाँ जी, जिन बच्चों ने नहीं लिया है प्लीज, आई थिंक आई वाज डिस्कनेक्टेड। हाँ जी, आई होप ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे रफ सरफेस, हिमांशी हैज गॉट समथिंग। सहजप्रीत, इफ इट इज अ कार्डबोर्ड, आपको जो बैक साइड है उससे पेपर रिमूव करना पड़ेगा। हिमांशी आल्सो हैज गॉट अ किट, लेकिन हिमांशी उसका सरफेस चेक कर लीजिए, इट शुड नॉट बी स्मूथ, ठीक है। पार्थ, आई डोंट नो व्हाट यू हैव गॉट इट, प्लीज अनम्यूट एंड टेल। ओके, अब आपने क्या करना है, plenty of you have got the things required. What I want you to do is take eraser, but I'm getting disconnected again and again. तो आप लोग इरेजर लीजिए और इरेजर को रब कीजिए ऑन योर नोटबुक एंड ऑन योर रफ सरफेस, दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली रब कीजिए, एंड यू विल फाइंड वेरी बिग पीसेस। आप देखेंगे, चलिए ऑब्जर्वेशन आई पिक फ्रॉम यू। मन्नत, रफ सरफेस के ऊपर, वेरी गुड, कार्डबोर्ड बिल्कुल ठीक हो गया आपका, इसके ऊपर आप इरेजर को रब कीजिए और उसके बाद में अपनी कॉपी के पेज के ऊपर रब कीजिए, ठीक है। आपने ये बताना है कि कहां पर आपका ज्यादा इरेजर जो है वो रब हुआ या ज्यादा उसमें से वेस्ट आ रहा है। ज्यादा वेस्ट किस में से आ रहा है, जब आप कॉपी के पेज के ऊपर कर रहे हैं या रफ सरफेस के ऊपर कर रहे हैं? You will have to do this and tell me, raise your hand afterwards.
रफ सरफेस पे कीजिए और कॉपी वाले सरफेस पे कीजिए, कॉपी के पेज के ऊपर कीजिए। कहां पर आपको ज्यादा वेस्ट मिला, इरेजर का वेस्ट आपको कहां ज्यादा मिला? हाँ जी बेटा, मैम ऑन रफ सरफेस। ऑन रफ सरफेस आपको ज्यादा वेस्ट, on rough surface. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर हैविंग द Ma'am, on सेम ओपिनियन कि रफ सरफेस के ऊपर हमें ज्यादा इरेजर मिला। इट इज बिकॉज, वेरी गुड, नंदिनी इज ट्राइंग टू शो मी, वेरी गुड बेटा, इट इज बिकॉज, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी मन्नत ऑल्सो, शाबाश, हाँ जी बिल्कुल ठीक, यू विल गेट बिग पीसेस ऑफ द वेस्ट इरेजर, है ना, जब आप बेसर रफ सरफेस के ऊपर कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि जो फ्रिक्शन होता है रफ सरफेसेस में ज्यादा है, और फ्रिक्शन के कारण वेयर एंड टेयर जो है वो ज्यादा होता है। फ्रिक्शन, मोर इज द वेयर एंड टेयर, इरेजर का वेयर एंड टेयर इज मोर ऑन rough surfaces when compared to a smooth surface where friction is less. फ्रिक्शन तो कौन ऑफर करेगा? रफ सरफेस ऑफर करेगा। जो स्मूथ सरफेस है वो तो फ्रिक्शन ऑफर नहीं करेगा या बहुत कम करेगा, तो वहां वेयर एंड टेयर कम है। वेयर एंड टेयर वहां ज्यादा है जहां फ्रिक्शन ज्यादा है। अगर आपके जीन्स का क्लॉथ है तो उसके ऊपर रब करके देखिए, और आपका कोई स्मूथ सिंथेटिक क्लॉथ है उसके ऊपर रब करके देखिए, कहां पर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जीन का सरफेस हमारा रफ सरफेस है, तो वहां पर ज्यादा। हिमांशी, यू वांट टू से समथिंग माय डियर, or else you can lower your hand. We are left with few minutes. Let us recall quickly. So now we know. Now we know that friction is both friend and foe. In the absence of friction, no vehicle would be able to move. Because of friction, it makes the vehicles to stop and thus reduce many accidents. Friction also helps in walking on road without slipping. ये बहुत सारे ऐसे example है जो हमने already discuss कर लिए हैं. So it is a necessary evil. We cannot hold objects. We cannot walk. We cannot light a matchstick if friction is not there. So it is desirable, but it is sometimes not desirable also. हम नहीं चाहते कि मशीनरी पार्ट्स जो है उनका वेयर एंड टेयर हो, हम नहीं चाहते कि हमारे शूज टायर्स जल्दी खराब हो जाएं. So it is disadvantages also at some times. So friction can be both help and hindrance. आपने ये भी याद रखना है कि फ्रिक्शन जो है it is important in our life. Without friction, imagining your life would be so difficult, but at the same time there are certain things which are not very desirable, which comes along with the advantages of the friction. All right, that is all for today.